تو اور کیسا ہے؟ میں ہی پاگل ہوں جو اپنی ٹوٹی پھوٹی معذور حالت نہیں دیکھ رہا اور چلا ہوں آسمان سے چاند کو چھونے۔ وہ اپنی ناتمام خواہش کی وجہ سے بے تحاشا اذیت اور خود ترسی کا شکار ہونے لگا۔ لویزا تڑپ اٹھی، آنسو ٹوٹ کر گال بھگونے لگے۔ وہ اس وقت خود سرخ آنکھوں میں نمی لیے اپنے منہ سے آگ اگل رہا تھا۔ میر ہادی، ایسا بالکل نہیں، ڈاکٹر سے جھوٹی امید دلاتے ہی ہیں۔ میں نے جانے اپنے پیروں پر کھڑے ہونا بھی ہے کہ نہیں۔ اپنے معذور شوہر کو خود کے قابل نہیں سمجھتی نا تم؟ وہ چٹک پڑا اور لویزا کو لگا اس نے اپنے الفاظ سے اس کی وفا اور محبت کے منہ پر تماچا رسید کر دیا تھا۔ وہ بلبلا اٹھی، آپ پاگل ہو گئے میر ہادی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ایسی کوئی بات ہوتی تو میں آپ کی فکر اور خدمت گزاریوں میں اپنی ذات نہ بھلائے بیٹھی ہوتی۔ میری صرف آپ کے لیے وفا شعاری اور اتنے دنوں کی خدمت گزاری آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی؟ وہ چیخ پڑی، اگر مجھے بھوک لگی ہے لیزے تو تمہارے مجھے دیے گئے سونے کے بسکٹ بھی میرے کسی کام کے نہیں۔ اسی طرح تمہاری خدمت گزاری میرے کسی کام کی نہیں اگر تم مجھے اپنے قابل ہی نہیں سمجھتی۔ وہ بھرائی آواز میں غراتے بری طرح اپنے لب بھینچ گیا۔ لویزا نے اسے غور سے دیکھا، اس کی تڑپتی درد میں ڈوبی حالت، لویزا اقبال کے خود کے دل کی دیگرگوں حالت۔ یہ بات تو طے تھی، وہ اسے کسی صورت کسی قیمت پر چھوڑ نہیں سکتی تھی، نہ اس کے بغیر زندہ رہ سکتی ہے۔ وہ بہت جلد ایک فیصلہ کن نتیجے تک پہنچی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ اپنی ہر خواہش پوری کر سکتے ہیں، لیکن ذرا مجھے یہ تو بتائیں، آپ سے کس نے کہا کہ میں آپ کی بیوی ہوں اور آپ میری شوہر ہے؟ لویزا نے بالکل سرد و سپاٹ لہجے میں کہتی میر ہادی کی چودہ تب کو روشن کر دیے۔ وہ بھونچکا سا اسے دیکھے گیا۔ یہ کیا بات کر رہی ہو لویزا؟ ہوش میں تو ہو؟ تم میری بیوی اور میں تمہارا شوہر ہوں۔ وہ اس نئے الزام پر بلبلایا، تبھی چلا اٹھا تھا۔ اس لڑکی کی ذرا سی دوری، ذرا سی بے رخی اس کی روح کو تڑپانے کے لیے کافی تھی، کجا کہ اتنا بڑا الزام کہ وہ سرے سے اس کی کچھ لگتی ہی نہیں۔ میر ہادی کو لگا صدمے سے اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ تو لائیں، دکھائیں کوئی ثبوت۔ کیسے ثابت کر سکتے ہیں آپ کہ میں آپ کی بیوی ہوں؟ کل کو ہمارے ملن کا جو نتیجہ نکلے گا اس کو جائز ثابت کرنے کا کیا ثبوت دکھائیں گے آپ لوگوں کو؟ وہ کافی بے رحمی اور بے دردی سے بولی تھی۔ میر ہادی پھٹی پھٹی خون چھلکاتی نگاہیں لیے اسے دیکھے گیا۔ لیزے، یہ ہولناک قسم کی پہنیاں بجھوا کر مجھے یوں اذیت مت دو کہ میری جان نکل جائے۔ صاف صاف بتاؤ، آخر بات کیا ہے؟ کس طرح کے ثبوت؟ کہنا کیا چاہتی ہو؟ وہ سلگ اٹھا، ہمارا نکاح رجسٹرڈ نہیں ہوا تھا، ہم نے مسجد میں نکاح کیا تھا۔ ایکسیڈنٹ کے وقت گاڑی میں آگ لگی اور نکاح نامہ اور تمام ضروری ڈاکومنٹس جل کر راکھ ہو گئے۔ اب ہمارے پاس کوئی پروف نہیں ہے رانا میر ہادی کہ ہم دونوں ہسبینڈ وائف ہیں۔ آج پھر لویزا اقبال نے اس شخص کو اپنی محبت کو پانے کو بڑی دقتوں سے ہی صحیح مگر فراٹی سے جھوٹ بول دیا تھا۔ مگر یہ جھوٹ بولتے وہ بری طرح رو پڑی تھی۔ اس کی بات سن کر میر ہادی اپنی جگہ پر پتھر کی مورت بن گیا۔ وہ گمسم سا تھا، پھر اپنا ماتھا بری طرح مسلا۔ تو تم اس لیے اتنے دنوں سے نکاح نامے کو لے کر ان فضول کے تحفظات کا شکار ہو؟ مجھ سے پہلے ایک بار ہی صحیح شیئر تو کیا ہوتا لیزا، ہم دوبارہ نکاح کر لیتے۔ میر ہادی کا لہجہ خود بخود نرم اور دھیما پڑ گیا، مگر وہ روئے گئی۔ لیزا میری جان، ادھر آؤ۔ میر ہادی نے اسے محبت سے بھرپور لہجے میں اپنے پاس بلایا تو وہ مزید ٹوٹ کر بکھر سی گئی۔ تب میر ہادی نے اپنی پوری طاقت لگا کر اٹھنے کی کوشش کی۔ وہ اپنے دائیں پیر پر پورا وزن نہ ڈال سکتا۔ جب بری طرح لڑکھڑایا تو لویزا نے بوکھلا کر لپک کر اسے تھام لیا۔ وہ اس کے دائیں بازو کو اپنی گردن میں ڈالے اسے سہارا دے گئی۔ وہ نم نگاہیں لیے اسے دیکھتے نرمی سے مسکرایا تھا، مجھے معاف کر دو لیزے، پلیز۔ غصے میں جانے کیا کیا بکواس کر بیٹھا۔ تمہاری وفا شعاری، بے لوث خدمت اور محبت میرے لیے کسی قیمتی متاع سے کم نہیں۔ تم میری زندگی ہو اور میں تمہارے بغیر ایک پل بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ وہ اس کی تھوڑی انتہائی نرمی سے اپنے ہاتھ سے تھامے اس کی آنکھوں میں جھانک کر اپنا محبت بھرا اظہار اسے سونپ رہا تھا۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کری، زہر لگ رہے ہیں اس وقت مجھے۔ وہ اسے سہارا دیتی بیڈ تک لائی اور بیڈ پر بٹھاتے نروٹھے پن سے بولی تو گہرا مسکرا دیا۔ اس کی کلائی مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں تھامے رکھی۔ وہ تو کل نکاح کے بعد اچھی سے طے ہوگا کہ میں تمہارے لیے زہر ہوں یا شہد۔ وہ دلکشی سے ہنستے ہوئے بولا تو لویزا کا چہرہ بھام چھوڑنے لگا۔ چونک کر اس کی جانب دیکھا، کل بہت سارے گواہوں اور پختہ ثبوتوں کے ساتھ نکاح کرتے ہیں لیزا، تاکہ پھر کوئی ہمارے رشتے پر انگلی نہ اٹھا پائے۔ وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے اس پر گہری نگاہیں جمائے کہہ رہا تھا تو لویزا نے سکھ کا سانس لیا۔ شکر ہے وہ بغیر کسی حجت کے اس کے منہ سے اپنی من چاہی خواہش کا اظہار کروانے میں کامیاب ہوئی تھی۔ اور اگر میں راضی نہ ہوئی تو؟ وہ اترائی تھی۔ اب اتنا کچھ سن کر نخرہ بھی تو دکھانا تھا۔ تو کل میں نے جو کچھ کرنا ہوا وہ میں زبردستی کر گزروں گا، پھر نتیجہ جو بھی نکلے دیتی رہنا دنیا کو وضاحتیں۔
اس نے انتہائی لاپرواہی اور سنجیدگی سے اتنی غیر سنجیدہ بات کی کہ لویزا کے اعصاب جھنجھنا اٹھے۔ بہت فضول کوئی کرنے لگے ہیں آپ، لہجہ شکوہ بھرا تھا۔ میری محبت تمہیں فضول کوئی لگتی ہے؟ وہ اسے چھیڑ رہا تھا۔ آپ کی یہ بے باک قسم کی دھمکیاں فضول لگتی ہیں، وہ ناک چڑھا کر بولتی، اس پر کمبل درست کر گئی۔ میرا ہاتھی نے اس کا چہرہ تھام کر اس کی بھیگی پلکیں اپنے انگوٹھے سے صاف کی تھی۔ کتنی مرتبہ کہا ہے رویا مت کرو یار، مجھے تکلیف ہوتی ہے، حالانکہ ان آنسوؤں کا سبب بھی ہر بار آپ ہی بنتے۔ اب نہیں بنوں گا، لہجے میں پختگی تھی۔ دیکھتے ہیں، وہ چھوٹی سی ناک چڑھا کر بولی تو وہ مسکرا دیا۔ یقین نہیں آتا ابھی ہم اتنا بڑا جھگڑا کر کے اتنی نارمل گفتگو کر رہے ہیں، وہ ہنس دیا۔ کیونکہ یہ میاں بیوی ہونے کی خاص نشانی ہے کہ جوڑے اوپر بنتے ہیں، صرف جھگڑا کرنے نیچے آتے ہیں شاید، وہ جڑ کر بولی۔ تو وہ کہکا لگا کر ہنس دیا۔ میر ہادی نے پھر ایک بے باک جسارت کرتے اس کا ماتھا چوما تو لویزا نے وہاں سے کھسکنے میں ہی اپنی عافیت جانی۔ وہ اپنے کمرے میں آئی تھی اور اپنے پاپا کو کال ملی۔ وہ پہلے ہی آگ کے ڈھیر پر بیٹھے تھے، اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی غرا اٹھے۔ لیزا، تم رات کی اس وقت اس شخص کے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ وہ اذیت کی انتہا سے چلائے تھے۔ لویزا شرمندگی کے مارے زمین میں جیسے گڑ گئی۔ اس نے سوچنے کا تکلف نہ کیا کہ انہیں اس بات کا کیسے علم ہوا۔ وہ جانتے تھی اس کے بابا اس کی ہر بات سے باخبر ہیں۔ پاپا، میں میر ہادی سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، آپ صبح آ جائیے گا اور تمام انتظامات کر لیجیے گا، لویزا نے آہستگی سے کہا۔ تو فون میں چند پل کے لیے خاموشی چھا گئی۔ اور وہ تمہیں پہلے ہی اپنی بیوی سمجھنے والا اس نکاح پر کیسے راضی ہو گیا؟ جانے کیوں لویزا کو اقبال حمید کے لہجے میں میر ہادی کے لیے نفرت ہی نفرت محسوس ہوتی تھی۔ اس نے ایک سر سی سانس اپنے اندر کھینچی۔ میں نے ان سے کہا کہ ہمارا نکاح نامہ ایکسیڈنٹ میں سپوائل ہو گیا تو وہ مان گئے، لویزا نے انہیں دھیمی سی آواز میں توجیہ پیش کی۔ اور اگر کل کو کبھی اس کی یادداشت واپس آ گئی تو، اس ذہنی مریض نے پھر سے تمہیں بیچ منتھا چھوڑ دیا تو، تمہارے ساتھ پھر سے برا سلوک کیا تو، آئی سویئر لیزا، میں اس آدمی کو شوٹ کروا دوں گا، وہ فون میں سے دھاڑے۔ ادھر لویزا پھر سے سسک پڑی تھی۔ اس کی دنیا میں یہ دو مرد تھے، دونوں ہی نہایت جارحانہ اور غصیلے تھے۔ اصل معنوں میں تو وہ اب بھی بیچ مندھار ہی پھنسی ہوئی تھی، دو کشتیاں باپ اور محبت کے درمیان جھول رہی تھی۔ اس کی سسکی کی آواز سن کر اقبال حمید خود بخود ڈھیلے پڑ گئے۔ یہ نکاح ایک شرط پر ہوگا لیزے، وہ سنجیدگی سے بولے۔ تو لویزا چونکی۔ کون سی پاپا؟ اس نے پہلو بدلا۔ کل سے رانا میر ہادی کی ساری ادویات چینج ہوں گی، اور اس بات کے لیے اس آدمی کی یادداشت کبھی واپس نہ آئے، مجھے کسی حد تک بھی جانا پڑا میں جاؤں گا، اقبال حمید نے حتمی لہجے میں کہا۔ تو لویزا نے اپنا سر تھام لیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں پاپا؟ وہ چیخ پڑی۔ صدمے کی شدت سے آواز پھٹ سی گئی۔ پوری رات ہے سوچنے کے لیے، اچھی طرح سوچ لو گڑیا، میں اب اس آدمی کو تمہاری زندگی سے کھیلنے کی اجازت بالکل نہیں دے سکتا، سوچ کر صبح مجھے فجر پڑھ کر کال کر لینا۔ انہوں نے کہتے فون رکھ دیا تھا۔ لویزا سسک سسک کر رو رہی تھی۔ صبح اپارٹمنٹ میں غیر معمولی سی ہلچل تھی۔ وہ ایش وائٹ کلر کی گاؤن میکسی، جس پر ڈل گولڈن کلر کا فینسی کام تھا، اس پر تازہ گلابوں کے گجرے ہاتھوں میں ڈالے آسمان سے اتری کوئی اپسرا لگ رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ رانا میر ہادی کے ساتھ ایک پاکیزہ مضبوط بندھن میں تعمر کے لیے بن گئی تھی۔ رانا میر ہادی اس وقت حیرت زدہ ہوا تھا جب نکاح کی تمام قانونی کارروائی اسلام آباد ہائی کورٹ کے سول ججز کے زیر نگرانی ہوئی تھی، جبکہ اقبال حمید نکاح کی کارروائی کے بعد بھی میر ہادی سے لیے دیے انداز میں رہے تو وہ سمجھ گیا بزرگوار کی ناراضگی اسے اب تک برقرار ہے۔ اس نے چپکے سے لویزا کی جانب دیکھ کر اشارہ کیا کہ اس کے والد محترم کا منہ کیوں غبارے کی طرح پھولا ہوا ہے، تو لویزا نے اپنے پاپا کی نقل اتارنے پر اسے سخت قسم کی گھوری سے نوازا تھا۔ تب وہ بڑی صفائی سے اتنی حضرات کے سامنے اسے آنکھ ونک کر گیا تو لویزا نے گڑبڑا کر نگاہیں پھیر لی۔ شام تک تمام مہمان رخصت ہو چکے تھے۔ لاؤنج میں لویزا اپنے پاپا اقبال حمید کے سینے پر سر رکھے بیٹھی تھی۔ پاپا، آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ لویزا نے بھیگا لہجہ لیے دھیمے سے پوچھا تھا۔ ہاں ناراض ہوں، تمہیں اپنی زندگی کے ساتھ اتنا بڑا رسک نہیں لینا چاہیے تھا لیزے، ان کی آواز میں گہرا دکھ تھا۔ اچھا سوچتے ہیں پاپا تو سب اچھا ہوتا ہے، انشاءاللہ آگے سب اچھا ہوگا، اس نے انہیں بچوں کی طرح تسلی دینے کی کوشش کی۔ اگر اس آدمی نے، وہ دانت پیس کر کچھ کہنا چاہتے تھے جب لویزا نے تیزی سے انہیں ٹوک دیا۔ پاپا پلیز، وہ سن لیں گے، وہ روحان سی ہو گئی۔ تو اقبال صاحب نے اپنے لب بری طرح بھینچ لیے۔ اس کی صحت کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ میری گڑیا کو ذرا سی بھی تکلیف نہ پہنچائے، نہیں تو۔ آپ فکر مت کریں انکل، میں لیزا کو بہت زیادہ خیال رکھوں گا، اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔
व्हील चेयर उनके करीब लाते उसने मुस्कुरा कर कहा। मगर इकबाल हमीद का जर्दो सपाट चेहरा बेतासुर रहा। तो मीर हादी ने एक सर्द सी सांस अपने अंदर खींची। आप अब तक नाराज़ हैं मुझसे? मीर हादी ने संजीदगी से पूछा। तो इकबाल हमीद ने एक नज़र उसकी जानिब देखा, जो सफ़ेद शलवार कमीज़ में बेतहाशा हैंडसम और डीसिंग लग रहा था। वो खामोश ही रहे। तो वो फिर से बोल उठा। आप जाने मुझे क्या समझ रही हैं, लेकिन इतना यकीन रखें कि मैं वो हूँ जो लवीज़ा को दुनिया की तमाम खुशियाँ दे सकता हूँ। बहुत जल्द अपने पैरों पर खड़े होकर लवीज़ा के लिए कुछ भी करूँगा, लेकिन उसे किसी चीज़ की कमी नहीं आने दूँगा। आप प्लीज़ यकीन रखें मेरा। उसका आर्ज़ाना सा लहजा इकबाल हमीद थोड़ा बहुत पसीज गए थे। गुड यंग मैन, होप सो तुम अपने दावों में खरे उतरोगे। लीज़ा मेरी गुड़िया, मुझे जाना होगा। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हुई तो अजान अंकल को बोल देना। इकबाल हमीद ने कहते ही उसका माथा चूमा। तो लवीज़ा की आंखें फिर से भीगने लगी। फिर वो चले गए। पीछे वो अपार्टमेंट में तन्हा थे। वो डिनर के लिए डाइनिंग टेबल पर था और लवीज़ा दुल्हनापी के बावजूद उसके लिए टेबल पर खाना चुन रही थी। मीर हादी ने उसकी कलाई थामी। मेरे पास बैठो लीज़ा, मुलाजमा कर लेगी ना? वो झंझलाया। तो वो मुस्कुराती उसके मुकाबिल चेयर पर बैठ गई। दोनों ने डिनर किया। आप कमरे में चलें, मैं ये बखेड़ा समेट कर आती हूँ, लवीज़ा ने कहा। तो वह बात में सर हिलाता कमरे में चला गया। लवीज़ा ने सारा बिखरा हुआ लाउंज और औंधा हुआ किचन मुलाजमाओं से साफ करवाया। मीर हादी के लिए दूध का गिलास लिए वो कमरे की तरफ जाने लगी, जब कदम मन मन के भारी हो गए। जब कोई रिश्ता नहीं था तो वो रात को भी धड़ल्ले से उसके कमरे में घुस जाया करती थी। आज जब उसके साथ एक मजबूत तरीन बंधन में बंध गई थी तो फितरी शर्म हया और झिझक के बाइस उसका दम निकलने वाला हो गया। वो बामुश्किल कमरे में दाखिल हुई थी। आज ये कमरा बहुत फैंसी तरीके से ताज़ा फूलों और सेंटेड कैंडल से सजा हुआ था। वो आज रॉकिंग चेयर पर हिल्के से झूलता खिड़की से बाहर पूरे चांद को देखते किसी गहरी सोच में खोया हुआ था। आहट महसूस होते मीर हादी ने पीछे मुड़कर देखा। लवीज़ा झिझकते उसके करीब आई और एक धीमी शर्मीली सी मुस्कान चेहरे पर सजाए दूध का गिलास और उसकी मेरसन उसे थमाई। उसकी याददाश्त वापस आने वाली अद्वियात पर उसने पापा से कोई भी समझौता नहीं किया था। बहुत मुश्किल और ज़िद से उन्हें समझा ही लिया कि जो होगा वो उसकी किस्मत और नसीब का हिस्सा होगा, जो उसे हर हाल में कबूल है। तो वो इस शख्स के साथ इतना बड़ा जुल्म नहीं करें। तब इकबाल हमीद को एक मरतबा फिर लाडली बेटी के सामने पसपाई अख्तियार करनी पड़ी थी। मीर हादी ने मेडिसिन लेकर हिस्ब आदत दूध का आधा गिलास उसे थमा दिया, जो लवीज़ा ने पूरा पी लिया। इस दौरान मीर हादी ने उसका हाथ, जो मजबूती से थाम रखा था, बिल्कुल नहीं छोड़ा था। लवीज़ा गिलास एक तरफ रखकर पूरी तरह उसकी जानिब मतवज्जह हुई। दोनों खामोश थे। कोई भी लफ्ज़, न कोई एक भी जुमला। बाज़ दफ़ा शायद हम खामोश हो जाते हैं और हमारी रूहें आपस में महवे गुफ्तगू होती हैं। उनके साथ भी कुछ ऐसा था शायद। लवीज़ा ने उसके करीब खड़े होते चांद को जी भर कर देखा। ये तन्हाई, रात का आलम और पूरे चांद की चांदनी नोखे से जज्बात की शोरीदा सोरी को तूफ़ानी किस्म की हवा दे रहे थे। ये जानलेवा सी खामोशी बदन में सनसनी सी दौड़ा गई। मीर हादी अब पूरी तरह उसकी जानिब देखता उसे गहरी निगाहों के हसार में रखे हुए था। उसकी निगाहों की तपिश से ही लवीज़ा को अपना जिस्म पिघलता महसूस हुआ। लवीज़ा को अजीब लगा। वो कोई पेशकदमी नहीं कर रहा था। वो उसे उसके कल के रवैये से नाराज़ था या उसे आजमाना चाहता था। आजमाना इसलिए कि लवीज़ा के मुताबिक उसके ग्रेस की वजह निकाहनामा था। तो क्या वो अब भी यही सोच रहा था कि उसके ग्रेस की वजह उसकी माजूरी है? तो क्या आज पहली पेशकदमी लवीज़ा को करनी थी, ताकि वो अपना कहा सर साबित कर दे कि उसके गुरेज की वजह सिर्फ निकाहनामा था? लवीज़ा ने इस रासिमगी की हालत में उसे देखा।
وہ लाउंज में बैठा बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रहा था। वो आज बीएससी का अपना आखिरी पेपर देने गई थी। मिरहादी को आहट महसूस हुई तो वो बिल्कुल तैयार हुआ। लवीज़ा अपने ध्यान में लाउंज में दाखिल हुई और सामने का नज़ारा देखकर चीख उठी, मिरहादी आप! वो बगैर किसी सहारे के बिल्कुल सामने अपने पैरों पर खड़ा था। लवीज़ा भागकर उसकी खुली हुई बाहों में समाई तो राना मिरहादी ने मुस्कुराकर उसके गर्द अपने हसार मज़ीद तंग कर लिया। आप ठीक है ना? पैरों में दर्द तो नहीं? उसके सीने से चेहरा निकाल कर लवीज़ा ने उसकी आंखों में झांका तो वो उनको थाई आंखों के समंदर में डूब उभरा। बेहद मामूली सी लंगड़ाहट है। थेरापिस्ट ने कहा है कुछ दिनों तक वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उसने झुककर उसकी छोटी सी नाक को अपने दांतों में दबाते कहा तो वो खिलखिला कर हंस दी। वो हमेशा यही करता था। जब दिल करता कि वो उसकी मुतरन्निम धीमे सुरों की हंसी की जल तरंग सुने, वो यूं ही उसकी नाक अपने दांतों में धीमे से दबा लेता तो वो हमेशा खुलकर हंस देती। क्या हुआ है? ऐसे कैसे देख रहे हैं? 3 माह हो चुके थे निकाह को, फिर भी इन निकाहों की ख्वाबीदा से जज्बों को आंच देती भड़कती सी लपक अब तक नाकाबिले बर्दाश्त ही थी। जान, मैं तुम्हें ऐसे वैसे जैसे कैसे सब तरह से देख सकता हूँ, परमिट है मेरे पास? वो काफ़ी तरंग में बोला था। कोई हाल नहीं कसम से। वो उसकी इस कदर सरफिरी दीवानगी पर अफसोस ही कर सकती थी। रूम में चले? मिरहाती ने उसके कान में मीठी धीमी सी सरगोशी की। हम शराफत से किचन में चल रहे हैं। उसने कंधे उचकाए। बोर सालिमा, वो रहा तो वो हंसती। कमरे में हल्की रोशनी थी। खिड़की से आती हवा में पर्दे लहरा रहे थे। मिरहादी बेड पर नीम दराज सा, बाल बिखरे हुए और एक अजीब सी बेचैनी दिलो जान में सराहत कर रही थी। लवीज़ा ने कहा था वो अपने बीएससी के लास्ट ईयर के पेपर देने वाली है, इसलिए अब वो कमरे के एक कोने में राइटिंग टेबल पर बैठी पढ़ाई में पूरी तरह डूबी हुई थी। वो कई बार उसको पुकार चुका था, मगर वो शायद किसी फार्मूले थ्योरी में अब ऐसा मसरूफ़ थी जो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी था। आपकी बार वो झंझलाहट का शिकार होता आह भर कर रह गया। वाह भाई, बीवी तो सामने है मगर लगता है शोहर का कोई वजूद ही नहीं, कोई अहमियत ही नहीं। लवीज़ा जो कब से उसकी बेचैनी नोट कर रही थी, उसको पता था अब वो कोई और हथकंडा आजमाएगा, मगर किताब से सर उठाए बगैर काफ़ी मसरूफ़ सा अंदाज था। हादी प्लीज़ ड्रामे बंद करें, मुझे ये असाइनमेंट मुकम्मल करनी है। वो इस वक्त वाइवा की तैयारी में मसरूफ़ थी। अच्छा ठीक है। हादी ने आहिस्ता आहिस्ता कंबल उठाया, ज़मीन पर पटक दिया। बेड के साथ लिपट कर बेड पर पड़ी प्लेटें ज़मीन बोस हुई। उसने बहुत अच्छे से उसकी बात मानते आखिर में एक धमाका किया तो लवीज़ा चौंकी। ये क्या था? लवीज़ा की आंखें फैल गई। पलट कर ज़रा सा पीछे देखा। मेरा दिल था वो भी ऐसे ही गिरा है आपकी मसरूफियत और बेतवजही के नीचे। उसने बहुत ही बेजार सी शक्ल बनाए हुए शिकवा किया तो लवीज़ा ने उसे घूर के देखा, मगर हंसी दबा न सकी। आप संजीदा नहीं हो सकते कभी? लवीज़ा ने कमर पर हाथ रखे बोला तो हादी ने उसे घूरा, मगर फिर से बोला, हो सकता हूँ जब बीवी संजीदगी छोड़ दे जिसमें एक बूढ़ी रूह हलूल कर गई है, और फिर शायद क्योंकि अभी तो दुनिया जहाँ की संजीदगी मेरी कड़वी एलोवेरा ने समा रखी है खुद में। वो उसके हसीन चेहरे पर निगाहें जमाए तो लवीज़ा ने सर नफ़ी में हिलाते हुए दोबारा किताब में नजरें गाड़ दी। हादी ने इधर उधर देखा, फिर साइड टेबल पर पड़ा पेन उठाया और नीचे फेंक दिया। टिक की आवाज़ पर लवीज़ा ने पीछे देखा तो सर पीट कर रह गई। हादी, ये क्या बचपन है? लवीज़ा की आंखें फैल गईं। अब तुम्हारे पास तो शोर के लिए वक्त नहीं, तो चीज़ों से दिल बहला रहा हूँ, उसने बड़ी संजीदगी से कहा, जैसे दलील दे रहा हो। मैं कह रही हूँ ना, अभी मसरूफ़ हूँ। वो आखिरी बार उसे समझाने की कोशिश करने लगी। और मैं कह रहा हूँ कि मुझे तुम और तुम्हारा वक्त अभी के अभी चाहिए, यहाँ मेरे पास, मेरे बहुत करीब। उसकी बचकाना सी ख्वाहिशों में भी गहरी संजीदगी थी। लवीज़ा ने किताब बंद की, उसकी तरफ आई, हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर थोड़ा पीछे खड़ी हुई। क्या चाहते हैं आप? वह तनक कर बोली, जबकि मिरहादी उसे खुद तक आते देख और उसकी तमाम तर तवज्जो कामयाबी से हासिल कर लेने पर फातिहाना मुस्कुराहट से उसे देखा। चाहता तो मैं भी बहुत कुछ हूँ, जैसे अभी बता दिया तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, इसलिए वो चाहत रात को बताऊँगा, मगर फ़िलहाल बीवी का कुछ वक्त चाहिए। वो लापरवाही से बोला। और अगर बीवी वो वक्त ना दे तो? लवीज़ा ने मसनूई गुस्से का इजहार किया। तो शोर फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरा कमरा तहस नहस कर देगा। उसने टेबल पर पड़ी चीज़ों की तरफ मायने खेजी से देखते हुए कहा तो लवीज़ा ने सर पकड़ लिया। आप एक ज़िद्दी बच्चे से भी ख़तरनाक हैं। वो झंझला गए। और आप दुनिया की सबसे हसीन टीचर हैं जो अपने देरीना और दिलाजीज शागिर्द को नज़रअंदाज कर रही हैं। हाथी ने फ़ौरन हिसाब बेबाक किया तो वो नफ़ी में सर हिला गई। कितने ड्रामेबाज हैं आप! उसके शोशे पर लवीज़ा की हंसी छूट गई।
ड्रामे बाज नहीं, आशिक हूँ, और जब महबूब का वक्त नहीं मिले तो शोर मचाना लाजमी होता है, फिर चाहे वो शोर दिल मचाए या रोमान पर जज्बों की महक। मीर हाथी ने उसका हाथ पकड़कर ज़रा सा खींचा तो वो उसके सीने पर आ गिरी। आखिरकार ये नन्ही सी चिड़िया एक बाज के शिकंजे में फंस ही गई। अब ये बाज आप पर अपनी मोहब्बत लुटाने से बिल्कुल बाज नहीं आएगा। तुम जिस पल मुझे पूरी तरह मैसर आ जाओ मेरी जान, तो उस पल मैं दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान बन जाता हूँ। उसने उसके बालों की खुशबू को खुद में उतारते हुए कहा। तो लवीज़ा ने नफ़ी में सर हिलाकर उसे देखा। खुशनसीब वो होता है जो बीवी को तंग ना करे, लवीज़ा ने रूठेपन से कहा था। इस बंदे की नफ़रत अगर बेपाया थी तो मोहब्बत तो उस छोटी सी जान के लिए उससे भी कई गुना ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो रही थी। वो अपनी मोहब्बतें उस पर इतनी शिद्दत से लुटाता कि वो घबरा ही जाती थी। अरे, तंग करना तो मोहब्बत की पहचान है, हाथी ने मुस्कुराहट दबा के कहा। अगर शौहर शरारत ना करे तो बीवी के लबों पर मुस्कुराहट कौन लाए। उसका कलेजा फिर से भारी होने लगा। लवीज़ा की हंसी छूट गई और ये मधुर जल तरंग सुनने को ही तो वो कब से ऊट पटांग हरकतें कर रहा था। लवीज़ा ने शरारत छुपाने के लिए नजरें झुकाई। आप हर तरह ड्रामेबाज हैं हादी। ड्रामाबाज नहीं, मोहब्बत में थोड़ा पागल हूँ। उसने उसका हाथ थाम कर अपने लबों से लगाया तो लवीज़ा खुद में सिमट सी गई। उसके करीब होते उसको अपना आप मज़ीद अनमोल लगने लगा था। दुनिया जहान का सुकून इस शख्स की आगोश में मिल जाता था, मगर दिल के कोने में अब भी कहीं न कहीं एक बेचैनी सी सुकून नहीं लेने देती थी कि इस सुकून का ख़जाना ताउम्र उसके पास नहीं रह सकता। आखिर कब तक? उसकी याददाश्त वापस आने के बाद उनके इस अटूट रिश्ते का क्या मुस्तकबिल होगा? और अगर उसने उसे छोड़ दिया तो वो कैसे रह पाएगी उसके बगैर? इसी वजह से वो उसे गुरेज बरतने की कोशिश करती थी कि शायद उसको इस शख्स की आदत इतनी पुख्ता ना हो, मगर कहाँ वो सरफराज शख्स उसे खुद से एक पल के लिए भी दूर होने नहीं देता था। हाथी के हाथ खुद ब खुद उसके बालों में उलझ गए। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके बालों में उंगलियां फेरता रहा, जैसे हर उलझन खोल देना चाहता हो। पता है लीजे, जब तुम मेरे पास ऐसे आकर बैठती हो, मेरी बाहों में सिमट जाती हो, तो लगता है दुनिया पर हर चीज़ बेमैनी है, हाथी ने मध्यम आवाज़ में कहा। लवीज़ा ने हल्की मुस्कुराहट के साथ उसके गर्द बाजू हमायल किए। आपको हमेशा इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों सोचती हैं? हाथी ने सर झुकाया और उसकी गर्दन पर नरम सा बोसा दिया। क्योंकि तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत हो। लवीज़ा का दिल जैसे एक पल को थम सा गया। उसने ज़रा सा चेहरा उठाया। निगाहों का तसादुम बड़ा दिलफरेब और जानलेवा था। वो एक भी लफ्ज़ कहे बगैर निगाहों के ज़रिए ही एक दूसरे के सुकून का सबब बन गए। हाथी ने आहिस्तगी और नरमी से उसके गाल सहलाए। तुम्हारी ये खामोशी से दी गई खुद सुपर्दगी दिल को अजीब सा सुकून देती है, वो ख्वाबनाक से लहजे में धीमी से बोला। लवीज़ा ने लबों पर मचलती शर्मीली सी मुस्कुराहट दबाने की नाकाम कोशिश की और फिर धीरे से उसके सीने से लग गई। हाथी ने उसे अपने बाजुओं में समेट लिया, जैसे पूरा जहां उस पल में समेट लिया हो। ऐसे ही रहो हमेशा मेरे पास, उसने सरगोशी की। लवीज़ा ने आंखें बंद कर ली और उस पल में दोनों सिर्फ एक दूसरे की धड़कन सुन रहे थे। ये अगले दिन की बात थी जब किचन में खुशबू फैली हुई थी। लवीज़ा एप्रन पहने बड़े एहतिमाम से खाना तैयार कर रही थी। बाल एक तरफ सिमटे हुए, चेहरे पर हल्की सी संजीदगी, मगर आंखों में वही नरम चमक थी जो हाथी के दिल को हमेशा बेकरार कर देती। हाथी जो कमरे में बोर हो रहा था अब नीचे आया तो उसे काम करते देखा। दरवाजे से टेक लगाए उसे देखता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, बेगम, कब तक इस किचन में हिलचल मचाएंगी आप? कभी शौहर के दिल में भी अपनी मोहब्बत से ज़रा हिलचल पैदा कीजिए। उसकी बात पर लवीज़ा ने ज़रा मुड़कर उसे घूरा। हादी, ये किचन है, आपका बेडरूम नहीं। उसकी बात पर हादी मुस्कुराया। आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते उसके पास आया। किचन हो या बेडरूम, बीवी जहाँ हो वही शौहर की दुनिया है। वो शेल्फ पर दोनों हाथ रखता हथेलियों के बल थोड़ा सा पीछे को झुकता बोला तो वो उसे देखते हुए नफ़ी में सर हिला गई। आप पास नहीं आएंगे ना? उसे फिर से खुदकुशिश करने पर आमादा होते देख लवीज़ा पूरी तरह झंझलाई थी। और इधर जाने क्यों उसे इस दुश्मनी जान को तपा कर उसे तंग करने में इस कदर मज़ा आता था। अब भी वो आकर उसके सर पर सवार था। हादी ने चुपके से पास पड़ी सब्जियों की टोकरी को हल्का सा धकेला तो स्लेब पर इधर उधर लड़क गई। हादी, ये क्या हरकत है? लवीज़ा ने घूर कर उसे देखते हुए कहा, जबकि वो आराम से खड़ा उसको देख रहा था। हादी ने कंधे उचकाए। इस वक्त ये सब्जियां मुझे रकीब लग रही हैं, इसलिए इन्हें काट डालूंगा, उबाल डालूंगा, चला डालूंगा, वो बुलंद आवाज़ में कहते कटिंग नाइफ उठा गया। लवीज़ा ने घूर कर देखा, मगर हादी की आंखों की शरारत पर हंसी दबाना मुश्किल हो गया। वो खामोशी से करीब आया, पास पड़े खुश कांटे में दो उंगलियों से थोड़ा सा आटा लगाकर लीज़ा के गाल पर लगा दिया। हादी, आज मुझे लगता है आपने खाना नहीं, ये चिमटे खाने हैं।
लवीज़ा ने मसनूई गुस्से से कहा। तो हादी ने शरारत से आटे की हल्की सी लकीर उसके गाल से लेकर गर्दन तक खींच दी। उसकी इस हरकत पर लीज़ा का दिल कानों में बजने लगा। हादी प्लीज़, ये बचपनी वाली हरकतें छोड़ दें आप, उसने धड़कते दिल पर काबू पाते कहा, वरना वो उसकी तमाम तर तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवाने में कामयाब हो गया था। बीवी के साथ बचपना ही तो सबसे बड़ी मोहब्बत है, हादी ने खुमार भरे लहजे में कहा और उसे सड़ता पैर ऐसे निगाहों के हसार में रखा तो लवीज़ा के माथे पर पसीने की नन्ही बूंदें नमदार हुईं। जैसे ही हादी का हाथ उसकी गर्दन पर आकर रुका तो गर्दन की एक तरफ कुछ निशानात पाकर उसने लब दांतों तले दबाया और अपनी आटे से आलूद उंगलियों से उस निशान पर हल्का सा रब किया। ये निशानात मिटने ना देना, शोर की मोहब्बत की मोहरें हैं, उसने इंतहाई संजीदगी से ज़ोमैनी बात की तो लवीज़ा का चेहरा सुर्ख पड़ गया। धड़कनें बेकाबू होती सर पर दौड़ने लगी। लवीज़ा कुछ कह पाती उससे पहले हादी ने उसे बाहों में उठा लिया। मीर हादी, वो चिल्ला उठी, मुझे नीचे उतारे, क्या कर रहे हैं आप, वो मचली, मगर वो फ़ौरन उसे लिए कमरे की जानिब बढ़ गया। मेरी जान, मनपसंद बीवी को ज़मीन पर नहीं उतारा जाता, सर का ताज बनाया जाता है, दिल के करीब रखा जाता है। वो उसकी कमर पर गिरफ्त सख्त करता उसे लिए अंदर की जानिब बढ़ा और अंदर आकर आहिस्तगी से उसे नीचे उतारा। लवीज़ा का सांस बेहंगम सा था, गालों पर आटे की सफ़ेदी, आंखों में झिझक और होंठों पर हल्की मुस्कुराहट। वो उसके दीवानापन के शुरीदा सुरी पर बंद नहीं बन पा रही थी। उसकी दीवानगी की कोई हद कायम ना रही। आपको तो बस मौका चाहिए, वो अब उसे घूर रही थी। हाथी ने उसकी ठोड़ी थाम कर नरमी से ऊपर की और उसकी आंखों में झांका। हाँ, क्योंकि ये दीवाना अपनी बीवी को पूरी तरह इन निगाहों में बसा लेना चाहता है, इतना कि बाकी दुनिया इन आंखों में धुंधला जाए। उसकी इस कदर शिद्दत पर झनझनाते असाब के साथ घबराते हुए उसे देखा। हादी, मुझे खाना बनाना है, वो मन मनाई, लेकिन मुझे खाना नहीं खाना। वो मज़ीद शोखी और शरारत पर उतर आया। मीर हादी ने उसका आटा लगा हाथ थामा और धीरे से साइड टेबल पर पड़े टिश्यू पेपर से उसके हाथ की एक एक उंगली बड़ी तवज्जो और मोहब्बत से साफ करते उसका ठंडा हाथ अपने दिल के मकाम पर रखा। यहाँ सुनो, ये धड़कन तुम्हारे नाम की है, वो बहकती सी लहजे में बोलता। लवीज़ा को भी अपने साथ बहकाने लगा। वो खुद में सिमटी सी उसके इरादे भांप कर अपने पर समेटने लगी, मगर इस शख्स की पागल कुर्बत ऐसा पंजरा थी जिसमें वो उसकी सांसें तक कैद कर देता था। लवीज़ा का दिल का सभी चेहरा उसकी हरकतों और बातों पर सुर्ख होने लगा। ये आदमी कितना बेबाक था, उसे अब अंदाज़ा हो रहा था। बहुत ही कोई फजूल इंसान है आप इतने बेबाक हैं, मुझे अंदाज़ा नहीं था। अपनी शर्म व हया और शदीद किस्म की घबराहट को उसने गुस्से के गहराई में छुपा कर सटपटाते हुए कहा तो वो मध्यम सा मुस्कुराया, जबकि उसके हाथ उसके गर्द मजबूत तरीन हसार खींच गए। मोहब्बत का जायका हमेशा थोड़ा तेज़ होता है बेगम, वरना मज़ा नहीं आता, उसने ज़ोमैनी अंदाज में कहा तो वह बेहद खजल हुई, लेकिन उसकी पेशकदमी कबूल करने का अंदाज यूँ था कि लवीज़ा के अंग अंग से मुसर्रत की किरणें फूटने लगी। मीर हादी ने आहिस्ता से उसे अपने करीब किया, उसके माथे पर तवील तर बोसा दिया। लवीज़ा ने उसके सीने पर सर रख दिया। दिल की धड़कनों की आवाज़ एक हो गई। दोनों खामोश थे, मगर खामोशी के बीच मोहब्बत की गुफ्तगू गूंज रही थी। इंतिमा में मीर हाथी ने वाकई उसे पलकों पर बिठा कर रखा, दुनिया जहाँ की खुशियाँ उसकी झोली में डाल दी। वो उसका हाथ थामे सोसाइटी के पार्क में चहलकदमी कर रहा था और गहरी दिलचस्पी से पार्क में खेलते बच्चों की जानिब देख रहा था। आपको बच्चे कैसे लगते हैं मीर हादी? खुद में आने वाली बड़ी तब्दीली को महसूस कर लेने के बायस लवीज़ा ने खोए खोए से लहजे में पूछा था। बच्चे किसको अच्छे नहीं लगते अलवीरा? मैं चाहता हूँ हमारे ढेर सारे बच्चे हों, वो मुस्कुराकर बोलता पार्क में खेलते बच्चों को दिलचस्पी से देख रहा था। मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है, वो अचानक उसके सामने आई थी। उसकी आंखों में झांका। मीर हादी चौंक गया। अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन शायद आप पापा बनने वाले हैं। नवीज़ा ने उसके सर पर धमाका किया। वेट व्हाट? वो चिल्ला उठा और उसे कंधों से थामती जैसे झंझोर डाला। उसके चेहरे पर खुशी की ऐसी चमक थी जो नाकाबिले बयान थी। लवीज़ा खिलखिला कर हंसी, लेकिन इतनी ज़्यादा खुशियों को नज़र भी बहुत ज़्यादा और बहुत जल्द लग जाती है। भाई, मीर हादी भाई, मेरे भाई, एक दिल दहलाने वाली तकरार सुनकर वो दोनों चौंक कर एक तरफ मुतवज्जा हुए। शामिर, जो अपने दोस्त के साथ THQ इस्लामाबाद फेज़ 1 में किसी बहुत ज़रूरी काम से आया था, वहाँ मौजूद एक पार्क में एक शख्स को देखते पहले तो वो ये समझा उसे कोई गलत फहमी हुई है, मगर जब वो बेकरार सा होते उनके करीब आया तो उसके पैरों तले से ज़मीन सुरक गई। वो तड़प कर उसे पुकारता उसकी जानिब लपका, शामिर,
اٹک اٹک کر میر ہادی کے منہ سے ادا ہونے والے لفظ نے لویزا میر ہادی کو لٹھے کی معنی سفید کر دیا تھا۔ اسے یوں لگا آج یوم حساب ہے۔ شامیر آ کر میر ہادی کے مضبوط و توانا جسم سے سختی سے لپٹ گیا۔ ادھر میر ہادی اپنی جگہ پر پتھر بنا جم چکا تھا۔ یہ لمس جانا پہچانا تھا، یہ خوشبو اس کے خون کی مانوسی خوشبو تھی۔ میر ہادی کے توانا بازو خود بخود اس شخص سے لپٹ گئے۔ آپ کہاں چلے گئے تھے بھائی؟ ہم نے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا آپ کو، پورے پاکستان کی خاک چھان لی مگر آپ کہیں نہیں ملے۔ علی بھائی کس قدر پریشان تھے، میں نے کتنا ڈھونڈا آپ کو، مسلسل رو رہا تھا۔ شامیر جانے پہچانے نام لے رہا تھا۔ میر ہادی کے دماغ پر دباؤ پڑنے لگا، سر میں درد کی ٹیسیں اٹھی تو اپنی کمپنیوں کو پوری طرح مسلنے لگا۔ اب آپ ہمیں چھوڑ کر کہیں مت جانا بھائی۔ بھائی! شامیر گڑبڑا گیا کیونکہ رانا میر ہادی کا سر اس کے کندھے پر ایک جانب ڈھلک گیا تھا، وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ لویزا کی بھی چیخ نکل گئی۔ وہاں موجود لویزا کی جان پہچان کے لوگوں نے اور شامیر نے رانا میر ہادی کو اٹھا کر اس لویزا کی نشاندہی پر اسے اس کے گھر تک پہنچایا۔ مبارک ہو، یہ تاثرات یادداشت واپس آنے کے بھی ہو سکتے ہیں۔ جس طرح ان کے بھائی سے ان کی اچانک ملاقات ہوئی، ان کے بھائی نے انہیں ان کی پچھلی زندگی کے بارے میں باتیں کی، ان کا یہ اثر ہوا کہ ان کی پچھلی یادوں کی یلغار سے دماغ میں دباؤ پیدا ہوا اور یہ بے ہوش ہو گئے۔ باقی سب ٹھیک ہے، ان کی یادداشت واپس آ سکتی ہے۔ ڈاکٹر نے میر ہادی کے مکمل چیک اپ کے بعد لویزا علی جو کہ شامیر کے اطلاع دینے کے بعد فوراً وہاں پہنچا تھا اور شامیر کو بتایا تھا، جو اپنی اپنی جگہ بالکل خاموش تھے۔ ڈاکٹر جا چکا تھا۔ شامیر نے اجنبی کاٹا نگاہ لویزا پر ڈالی، جیسے پوچھنا چاہتا ہو تم کون ہو اور تمہیں کس نے حق دیا میرے بھائی کو ہم سے اس طرح چھین کر دور کرنے کا؟ جیسے تم سوچ رہے ہو ویسا کچھ نہیں ہے۔ لویزا نے بے تاثر چہرہ لیے بولنا شروع کیا اور شروع سے لے کر آخر تک اسے تمام کہانی کہہ سنائی۔ تب لاؤنج میں موت کا سا سناٹا چھا گیا تھا۔ ان کے پاس جیسے الفاظ ہی ختم ہو گئے تھے۔ جو بھی ہوا بالکل ٹھیک نہیں تھا، لیکن معاف کیجیے گا، آپ مان لیجیے کہ میر ہادی کے مکمل صحت یاب ہونے کے بعد آپ بھی تحاشا خود غرض اور مطلبی تھیں۔ صحت یاب ہونے کے بعد انہیں ہم سے ملا سکتی تھیں آپ۔ میر ہادی کا خاندان جو ان کے لیے خون کے آنسو رویا، دوست، احباب، کریئر اور کاروبار گیا بھاڑ میں، جس کے بارے میں ایک پل کے لیے بھی نہیں سوچا آپ نے؟ شامیر نے سرخ آنکھیں لیے چابک سے الفاظ ادا کیے تو لویزا نے زرد چہرہ بھیگی پلکیں لیے بری طرح اپنے لب کاٹے۔ تم چاچو بننے والے ہو شامیر؟ شامیر اس بات پر پہنچ کا سا اس نازک پاکیزگی میں لپٹی لڑکی کو دیکھ کر رہ گیا جو اب اس کے بھائی کی بیوی تھی۔ وہ بول کچھ رہا تھا اور سامنے سے اس نے جو خبر سنائی وہ اسے زمین سے آسمان تک پہنچانے کو کافی تھی۔ آپ جو ہمیں اور ہمارے خاندان کو دینے جا رہی ہیں اس کے صدقے آپ کے تمام گناہ معاف بھابھی، وہ دانت پیس کر کہتا اٹھ کر میر ہادی کے پاس گیا تو اس کی تقلید میں علی بھی اندر چلا گیا۔ وہ بے دریغ روتے ہوئے قرب میں ڈوبی مسکرا دی تھی۔ تبھی فون کی گھنٹی بج اٹھی تو لیزا نے سسک سسک کر روتے فون اٹھایا۔ لیزے میری جان، میری گڑیا، کیا ہوا ہے؟ وہ لوگ کون ہیں جو تمہارے گھر میں موجود ہے؟ اقبال حمید نے بے قراری سے پوچھا۔ کچھ اس کی سسکیاں ان کا دل دہلا رہی تھیں۔ بابا، وہ میر ہادی کے گھر والے ہیں، ان کی یادداشت واپس آ گئی ہے، وہ کہتی سسک پڑی۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، اب کیا ہوگا؟ کیسے وہ شخص؟ وہ چلا کر کچھ کہنا چاہتے تھے جب لویزا نے انہیں ٹوک دیا۔ کچھ بھی ہو بابا، چاہے کچھ بھی ہو، آپ دخل نہیں دیں گے، آپ کو میری قسم۔ آپ میرا مرا ہوا منہ دیکھیں گے اگر اب آپ نے کسی پر کوئی دباؤ ڈالا۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ بس یہی کہنے کے لیے اقبال حمید کو کال کی تھی۔ یہ کہتے ان کے مسلسل بولنے کے باوجود وہ فون رکھ چکی تھی۔ اسے ہوش میں آئے 1.5 گھنٹہ ہو چکا تھا۔ وہ لال انگارہ آنکھیں، بھینچے جبڑے اور بند مٹھیاں لیے مسلسل کسی غیر مرئی نقطے پر نگاہیں گاڑے بیٹھا تھا۔ اتنے عرصے کے بعد ملنے کے باوجود بھی شامیر اور علی کو میر ہادی نے خود کو کمرے میں تنہا چھوڑنے کا کہا تھا۔ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ یہ کیسی یاد تھی، کیسا ماضی تھا، کیسی آگاہی تھی جو اس کی دنیا میں اذیتوں، تکلیفوں اور درد کے نئے باب رقم کرنے آئی تھی۔ وجود شکستہ اور دل غموں سے بوجھل ہو چکا تھا۔ ہر سانس جیسے سینے پر ایک بوجھ کی طرح گرتا محسوس ہوا تھا۔ دنیا کی ساری رونقیں اس کی نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی اور دل میں ایک بے نام سا خلا پیدا ہو چکا تھا۔ مستقبل کی ساری امنگیں، خواب اور خواہشیں جیسے شکستہ سفینے کی طرح طوفان میں بہہ گئے تھے۔ ہر گزرا لمحہ اس کے دل پر جیسے بوجھ ڈال رہا تھا۔ ہر یاد اسے مزید ٹوٹنے پر مجبور کر رہی تھی۔
वो टूट चुका था, बिखर चुका था, जिसे ना कोई समेटने वाला था ना जोड़ने वाला। दिल और रूह के जख्मों से खून रस रहा था और ये जख्म नासूर बनने वाले थे, हमेशा हमेशा के लिए। क्यों क्यों क्यों? एक अनापरस्त शख्स की अना को पूरी तरह कुचल दिया गया था। ऐसा खुद पसंद, खुदी में डूबा, नखोर ज़िदा, एहसास बरतरी का शिकार, हुसेला, नखरेला और उखड़ मिजाज, अपनी खुदी से नीचे झुककर कहाँ गंवारा था किसी को इस खुश फहमी में मुतला करना कि राना मीर हादी उसके लिए कोई एहसास भी रखता है। हरगिज़ नहीं, कभी नहीं। सुबह से रात हो चुकी थी। वो कमरे में तन्हा पड़ा था और अब रात के 10 बजे शामिर और आली उसके पास थे। बाहर एक भयंकर तूफान आया हुआ था। तूफानी हवाएं खिड़कियों से टकरा टकरा कर होलनाक सी आवाज़ें पैदा कर रही थी, जैसे कहना चाहती हूँ, आज सब कुछ तिनकों की तरह बिखेर कर तबाही और बर्बादी कर देंगी। तूफानी मूसलाधार बारिश सब कुछ अपने साथ बहाने आई थी जैसे। बुलाओ उसे, कहाँ है वो? उसे फैसला सुनाए ताकि अपने घर जा सके हम। राना मीर हादी इंतहाई सफाकी से बोला था। शामिर और आली उसकी जानिब देख कर रह गए, जो आग के ढेर पर बैठा फटकार रहा था, मगर उसकी हालत ऐसी थी वो उसे कुछ कह नहीं सकते थे। तभी शामिर उठा और लवीज़ा को बुला लाया। सुबह के बाद अब वो एक दूसरे के मुकाबिल आए थे। जाने पहचानी आहट महसूस हुई थी। वो मुजरिमों की तरह सर झुकाए शिकस्ता कदम उठाती कमरे में दाखिल हुई थी। लवीज़ा ने एक निगाह, सिर्फ एक निगाह उठाकर इस हरजाई सफाक शख्स की आंखों में देखा था। क्या कुछ नहीं था इन सूजी रोई सुर्ख आंखों में? इल्तजाएं, मिन्नत, वफाओं की याद दहानी, मोहब्बत के वास्ते, मगर वो बेहिस सफाक अनापरस्त शख्स सब कुछ नज़रअंदाज कर गया, यूं जैसे उसे कभी रास्ते में ही ना मिला हो। उसकी वफ़ाएं, वफ़ाशवारी, उसका खलूस, खिदमतें, कितनी जल्दी सब कुछ भूल गया था ये हरजाई, सिर्फ आधे दिन में। मीर हादी की हकारत और शरर अंगेज निगाह उस पर पड़ी। आंखों के भड़कते शोले सब कुछ चलाकर खाकसार करने को थे। मेरी कही आखिरी गुफ्तगू को बहुत सीरियस ले लिया तुमने। मैंने कहा था अपने बाप को कहो तुम्हें कोई काठ का उल्लू दे दे, उसने दे दिया। चाहे उस काठ की उल्लू या तुम्हारे मनपसंद खिलौने को लूला, लंगड़ा या आधा पकड़ करके ही तुम्हें क्यों ना देना पड़े, ऐसा ही है ना? उसका कलेजा कैंची सी काट रखता था। उसका कलेजा क्रांति की तरह दिल और रूह की रगें काट गया था। लवीज़ा ने बड़ी सख्ती से अपनी मुट्ठियाँ और जबड़े भींचे। चेहरा सर्द सपाट और बेतासर ही था। तलाक दे रहा हूँ तुम्हें। चाहता तो अभी ज़बानी कलामी दे सकता था, लेकिन वो क्या है ना, सुबह मेरा लॉयर आकर तमाम कानूनी कार्रवाई करेगा। नहीं तो ये ना हो तुम्हारा ताकतवर बाप इस ज़बानी तलाक को भी झूठा साबित करके बेटी फिर से उसी शख्स के सर न थोप दे जो उसे छोड़ चुका हो। वो लफ्ज़ों से उसकी रूह पर चापक बरसा रहा था। तभी उसके अंदर धज्जियाँ से उड़ती महसूस हुई। वो उससे ज़्यादा नहीं सुन सकी, वो उससे ज़्यादा सुन भी नहीं सकती थी। एक दफ़ा पहले उसके ऐसे ही अल्फाज सुनकर वो मौत को गले लगाने वाली थी। अब ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकती थी, इसलिए वहाँ से जल्दी से निकल आई। अब उसके साथ जुड़ी एक नन्ही सी जान का सवाल था। तभी कुछ कहे सुने बगैर खामोशी से अपने कमरे में चली आई। उसने अपना कुछ ज़रूरी सामान पैक किया और उस तूफ़ानी रात में अजान के साथ अपार्टमेंट से निकल गई थी। मीर हादी को उसकी खामोशी भी थर थर जलती भट्टी में घसीट गई थी। दिल में सुइयां सी चुभने लगी। उसकी हालत ऐसी थी कि शामिर और आली को इतना भी पूछने की जरूरत ना हुई कि उसे इतना कुछ बोलकर यहाँ बैठा क्यों है, यहाँ से निकल क्यों नहीं जाता। आली बड़ी मुश्किलों से लेकिन वापस चला गया। शामिर और मीर हादी ने ये तूफ़ानी रात उसी अपार्टमेंट के उसी कमरे में आंखों में काट कर गुजारी थी। राना मीर हादी रॉकिंग चेयर पर बैठा सारी रात खिड़की में बैठा बाहर अंधेरे और तूफान को घूरता रहा। अब सुबह के 9 बज चुके थे। आखिर शामिर ही उसके करीब आया था। मीर हादी, क्या सचमुच छोड़ दोगे उन्हें? शामिर ने बड़ी दिक्कतों से पूछा था। तुम्हें क्या लगता है शामिर, उसे इतने सस्ते में छोड़ दूंगा? उसके बाप की ताकत के घमंड को खाक में ना मिलाया तो मेरा नाम राना मीर हादी नहीं। जाओ उसे बोल दो हमारे ख़ानदान में तलाक़ें नहीं होती। वो मर तो सकती है लेकिन राना मीर हादी के नाम से आज़ाद नहीं हो सकती, और मैं अब सारी ज़िंदगी ना उसे छोड़ूंगा ना अपने पास रखूंगा, और मेरी बीवी होगी सिर्फ नाम की। उसके लहजे में अस्तहों से फुंकार थी। शामिर अफसोस से सर हिलाते बाहर निकला, मगर ठटक गया। अपार्टमेंट पूरी तरह खाली था। मुलाजमिन में से कोई भी इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं था। वो उन्हीं कदमों कमरे में वापस आया। भाई, भाभी अपार्टमेंट छोड़कर जाने कहाँ चली गई हैं? शामिर ने उसके सर पर आसमान गिराया था, लेकिन उसे बज़ाहिर रत्ती बराबर भी परवाह नहीं थी। जाने दो, जहाँ जाती है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो ज़हर खान हुआ।
जब आपने उन्हें छोड़ना ही नहीं था तो रात तलाक की बात क्यों की थी? शामिर पूरी तरह झंझलाया था उसे तकलीफ देने के लिए। मिरहादी ने बड़े इत्मीनान से कहा था, उन्हें तकलीफ देकर फिर पूरी रात खुद क्यों नहीं सोए थे? खुद क्यों सारी रात आंखों में काट दी? शामिर ने उसका मुहासरा करना चाहा। वो मेरा मसला है शामिर, वो लापरवाह था। जामिद पत्थर सा सख्त और साकित। शामिर उसे देख कर रह गया। अब आगे क्या? उनके पास आपका बच्चा है भाई। शामिर उसकी ज़िद, हर तरमीम, बेहिसी और ख़ुद अजियती की इंतहा से ज़िद हो चुका था। शामिर, चलो यहाँ से, वो फिर से पथरीले लहजे में बोलता उठ खड़ा हुआ। आपका कोई सामान? शामिर, यहाँ की कोई चीज़ मेरी नहीं, कुछ नहीं लेना मुझे, वो धाड़ा था। लेकिन हाँ, अपना ऑफ किया हुआ मोबाइल नम वहशत से दाने काहे लिए चुपके से जेब में ज़रूर डाल लिया। वो दोनों वहाँ से निकल आए थे। वो दौड़ती आई थी और अब अपनी नानों के सीने से लगी फूट फूट कर रो रही थी। वो अब इस मुल्क में नहीं रह सकती थी। आखिरकार इस बेदर्द हर जाए की याददाश्त वापस आने के बाद उसका यही तो ठिकाना था। उसका लाशऊर ये सब झेलने के लिए जहनी तौर पर तैयार था, या एक खौफ था कहीं वो उसे छोड़ न दे। वो खुद के साथ बंधी एक उम्मीद के साथ ज़िंदगी गुजार सकती थी, लेकिन उसके नाम के बगैर बिल्कुल नहीं। इसीलिए उस सालिम शख्स से मुँह छुपाकर तुर्की चली आई थी। तबीयत काफ़ी बोझल थी। नानों को नाकाम मोहब्बत का किस्सा सुनाकर भी दिल हल्का ना हुआ तो वो ज़्यादा टेंशन बर्दाश्त ना कर सकी और अपने होश व हवास गंवा बैठी थी। वो इस वक्त हवेली में अपने कमरे में मौजूद था। तमाम कमरा तहस नहस करके भी दिल में भड़की आग ठंडी ना हो रही थी। इन धमाकों की आवाज़ सुनकर शामिर दहल कर उसके कमरे में आया था। अपने भाई की ऐसी उजड़ी बिखरी दर्दनाक हालत देखकर उसकी आंखों में भी आंसू आए थे। कमरे में पड़ी कुर्सी से एलएलटी धमाके से फोड़ता वो कोई जुनूनी लग रहा था। शामिर ने उसे पर से काबू किया। वो अपना आप छुड़ाने की कोशिश करता रहा। भाई प्लीज़, खुदा के लिए संभालिए अपने आप को, आपको अल्लाह का वास्ता। शामिर ने उसे झंझोड़ डाला। तब वो फूट फूट कर रोता ज़मीन पर सजदे की हालत में बैठता चला गया। शामिर, मेरा दिल दर्द से फट जाएगा, मेरे सीने में आग लगी है यार, मैं मर जाऊंगा। वो बेतहाशा रोते हुए बेबसी के आलम में अपना सीना मसलने लगा। अभी कुछ घंटों पहले की बात थी। नूर पीर के वक्त उसने इस्लामाबाद हमीद विला के गेट पर एक तूफ़ान बदतमीज़ी मचा दी थी। वो अंदर जाना चाहता था। गार्ड्स की भारी नफरी उसे रोक रही थी, लेकिन इतना ज़रूर था, वो दियो हैकल ढेर सारे गार्ड उस पर हाथ नहीं उठा रहे थे। अंदर से एक मुलाजिम आया था और उसने मीर हादी को अंदर आने का कहा था। वो आग का तूफ़ान बना तोड़ फोड़ मचाता बंगले के बड़े से लाउंज में दाखिल हुआ था। मुझे तो पहले से ही पता था तुम एक जहनी मरीज़ हो, और तुम्हारी हरकतों से कन्फर्म भी हो गया। तुम्हारी जुर्रत, मेरी जुर्रत का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा लें कि आपके ही घर में आपकी आंखों में आंखें डाल कर खड़ा हूँ। हालांकि जानता हूँ, आधी दुनिया जानती है, यहाँ से हुआ गायब बंदा दोबारा नहीं मिलता। उसके लहजे का तमस्खुर इकबाल हमीद को पूरी तरह सुलगा गया था। लवीज़ा कहाँ है? वो कहरबार लहजे में गुर्राया था। आपकी बार एक तमस्खुराना सी मुस्कुराहट इकबाल हमीद के लबों को छू गई। तुम तो उसको तलाक दे रहे थे, तो अब क्यों दुम हिलाते आ गए हो यहाँ? उन्होंने ताक कर वार किया था। तलाक दे रहा था मगर नहीं दी। अब उसे अपनी मामूली सी बांदी जो बना कर रखना है सारी ज़िंदगी, इसलिए लेने चला आया। वो काफ़ी इत्मीनान से बोला था, जबकि इकबाल हमीद का चेहरा गैज़ व गज़ब की शिद्दत से लहू छलकाने लगा। अपनी घटिया बकवास बंद करो, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, वो धाड़े थे। लवीज़ा, लवीज़ा, फ़ौरन से पहले बाहर निकलो, वो तहकुम भरे लहजे में पुकार रहा था। तुम्हारी औकात और हैसियत नहीं कि मेरी बेटी अपने पास रख सको। उसे भी शायद पता चल गया था, इसलिए तुमसे जान छुड़ाकर मुल्क छोड़कर भाग गई। इकबाल हमीद ने अब की बार इंतहाई मुतनफ़िर से लहजे में कहा। तो मीर हादी की रगें यूँ फूल गईं जैसे अभी फट पड़ेंगी। ये तो आप भी जानते हैं और मैं भी कि वो मुझसे जान छुड़ाकर नहीं भागी, इसलिए भागी है कि कहीं मैं उसे छोड़ ना दूँ। ऐसा ही है ना? आखिर इश्क करती है मुझसे, कैसे बर्दाश्त कर सकती है मैं उसे छोड़ दूँ? तभी मेरी वजह से आपको छोड़ गई। वो उनका तमस्खुर उड़ा रहा था। मुझे उम्मीद है वहाँ रहकर उसके सर से इश्क का भूत जल्द उतर जाएगा, तब उसे खुला देने के लिए तैयार रहना। वो भड़क उठे। वो भूत तो उसके सर से कभी नहीं उतरेगा। खैर, आपका ये ख्वाब ही रह जाएगा कि मैं उसे छोड़ दूंगा या वो मुझसे खुला लेगी। आखिर मरती है मुझ पर, मैं कहूँगा तो अपनी जान भी दे देगी, जैसे पहले देने की कोशिश की थी। हर बार से बाखबर होते हैं आप, ये भी अच्छे से जानते होंगे वो मेरी खातिर एक मरतबा खुदकशी की कोशिश कर चुकी है। मेरे एक इशारे पर मेरी मुलाजमा भी बन जाएगी। शिट योर माउथ, घटिया बेगैरत इंसान, और इससे पहले मैं तुम्हें शूट कर दूँ, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। इकबाल हमीद हलक के बल धारे थे। खैर, वो तो आप चाहकर भी मुझे नहीं कर सकते।
आखिर आपकी जान से प्यारी बेटी की जान जो मुझ में अटकी हुई है, वो जाते जाते भी उन्हें आग लगाना भूला नहीं था। लेकिन बंगले से निकलते ही उसे यूं लगा था उसके दिमाग में छोटे छोटे धमाके हो रहे हैं। वो उसे छोड़ गई थी, ये बात नाकाबिले बर्दाश्त वाक़ई हुई थी और अब वो सब कुछ तहस नहस करने की दर पे था। बेदरीग रोते अपने आंसू बेदर्दी से रगड़ डाले, एकदम सीधी होकर ज़मीन पर पुरस्कून होकर बैठते, बेड से टीक लगाकर सिगरेट सुलगाकर अपने अनाबी लबों में दबाई थी। शामिर बेबसी से उसे देखे गया। कितनी नादान है ना, जो समझती है मैं झुक जाऊंगा। वो चली गई और उसे लगता है मुझे जैसा अनाप रस उसके पीछे जाएगा। कितनी भोली है ना। वो अब भी की लहू छलकाती आंखें लिए हंस दिया था। भाई, आप दोनों की सना की जंग में उस नन्ही जान का क्या कसूर है यार। शामिर अपने ख़ानदान की सोच के लिए तड़प रहा था। तभी उसे होश दिलाने की कोशिश की, मगर वो तो अपना हिसाब किताब सोतो ज़ियाँ हार जीत के गोरख धंधे में उलझा हुआ था। उसे अपनी या किसी और चीज़ का होश ही कब था। वक्त बहुत सबक रफ्तारी से गुजर रहा था। डिलीवरी के नज़दीक वो नानो के हमरा पाकिस्तान वापस आ गई थी। नानो का घर इस्लामाबाद बहरिया टाउन में था। इकबाल हमीद ने उसे बेहद फोर्स किया कि वो अपने घर आए, लेकिन जाने क्यों वो हमीद विला वापस नहीं आना चाहती थी। लवीज़ा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी। नानो सादिया खातून ने उसे हथेली का छाला बना रखा था। डॉक्टर्स के मुताबिक वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी। लवीज़ा ने लाख चाहा था कि वो उसके बारे में ना सोचे, मगर अपनी लामतनाही सोचों पर अख्तियार ही कब था। उसके पूरे दिन चल रहे थे जब अचानक उसके बाबा उसके पास चले आए। उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी, इसलिए उसे घर में ही ड्रिप लगी हुई थी। इकबाल हमीद उसके सराहने बैठे उसका सर दबा रहे थे। चेहरे पर गहरा दुख, आंखों में अपनी बच्ची की दीगर को हालत देखकर नमी थी। बाबा, इस अरसे में वो कभी मेरा पूछने आए थे? लवीज़ा की नकाहत भरी आवाज़ में किए गए सवाल पर इकबाल हमीद की दिलो जान जैसे सुलग उठे थे। नहीं, वो नहीं आया कभी। इकबाल हमीद ने बड़ी दिक्कतों से कहा। अगर सच बताते तो क्या कहते? वो क्या कहने आया था? ये कि उनकी बेटी को ले जाकर अपनी बांदी या मुलाजमा बनाना चाहता है? इससे अच्छा था इस हालत में उन्होंने उससे झूठ बोल दिया था। ये सुनकर लवीज़ा के सीने में कुछ छनाके से टूटा था। तभी बेआवाज़ आंसू कंपड़ियों से गिरकर तकिया भिगोने लगी। उसकी इतनी तबीयत खराब हुई कि घर से उसे हॉस्पिटल मुंतकिल करना पड़ा। उसी रात उसने एक चांद से बेटे को जन्म दिया था, जो हूबहू अपने बाप की कॉर्बन कापी था। तीखे खड़े मगरूर नकूश पूरी तरह अपने बाप से चुरा कर वो लवीज़ा की गोद में था। ज़ारून मीर हादी। लवीज़ा इज़्ज़त रंगत लिए उसे गोद में लिए बैठी थी। इकबाल हमीद और नानो उसके पास थे। मंजर मुकम्मल होकर भी पूरी तरह अधूरा था। लवीज़ा के आंसू उसके अंदर ही कहीं सीने में गिरते बर्फ़ होने लगे। वो बेहिस शख्स बज़ाहिर खुद पर बेहिसी तारी किए हुए था, लेकिन उसने उसे ढूंढने को पूरी इस्लामाबाद की खाक छान ली थी। फिर बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों से मीर हादी को पता चला था वो दिलो जान का आज़ार बनी लड़की तुर्की में है। तब वो तुर्की भी गया था, लेकिन उसे वहाँ भी कुछ ना मिला। वो अपने बच्चे के लिए भी इतना तड़पा था जितना एक बाप तड़प सकता है, लेकिन उसके बस में कुछ नहीं था। तब उसके दिल में इकबाल हमीद की नफ़रत दिन ब दिन बढ़ती ही गई, जिसने ना उसे ये बताया था कि वो कहाँ पर है, बल्कि अपने तमाम तर्स और से संभाल करके राना मीर हादी को उससे दूर रखा था। ये नफ़रत क्या रंग लाने वाली थी, ये तो वो खुद भी नहीं जानता था। फिर आखिरकार उसकी सुन ली गई और पूरे 1 साल 10 माह बाद उसे उसका अता पता मालूम हुआ। वो एक कंपनी में काम कर रही थी। वो उसी दिन उसी ऑफिस में जा पहुंचा था। वहाँ के डायरेक्टर मिस्टर जान से मुलाकात की। मीर हादी ने उसे दूर से देखा था। शीशे के उस पार वो अपने कैबिन में एक फाइल पर झुकी हुई थी। ऑरेंज ब्राउन शर्ट की शलवार कमीज़ के ऊपर हमरंग दुपट्टा सलीके से सर पर जमा रखा था। वो कातिल हसीना पहले दिन से दिलकश और खूबसूरती की जीती जागती मूरत दिखाई दी थी। एक पत्थर दिल पत्थर से तराशी मूरत, जालिम, बेहिस और बेदर्द। उसे वहाँ देखकर राना मीर हादी के तन बदन में आग के भांबर जल उठे। उसकी ज़िंदगी पर बात करके, उसकी ज़िंदगी को आग लगाकर, उसका सुख, सुकून, चैन, नींदें सब हराम करके वो इतने सुकून में थी। सच में उसका सभी किताब चेहरा पुरसुकून था। राना मीर हादी का दिल किया उसके सर पर जा पहुँचे और उसको यूं झंझोड़ डाले कि उसकी ये लापरवाही, बेअतनाई और बेनियाज़ी खाक में मिल जाए। वो कोई ऐसा ही अज़म लिए वहाँ से निकला था। राना मीर हादी का इरादा इस पुरसकून और हमवार झील में एक बड़ा पत्थर फेंक कर ऐसी हलचल मचाने का था कि उसका भी सुकून, चैन, नींदें सब बर्बाद हो जाए। सर पर ऐसा जुनून सवार था कि ना अपने नुकसान और खसारे की रत्ती बराबर भी परवाह नहीं की और इस डूबती कंपनी के 60% शेयर्स खरीद डाले। ज़ारून यार, कपड़ों से क्या प्रॉब्लम है आखिर तुम्हें? क्यों नंगा रहना पसंद करते हो? हया नहीं आती? वो सवा सारा ज़ारून के पीछे भाग भाग कर पागल हो गई थी।
जो उसके हाथ आते आते चिकने घड़े की तरह फिसल जाता था। ऑफिस जाने के लिए काफ़ी लेट हो चुकी थी। उसके पापा ने ज़ारून के लिए दो दो गवर्नेंस रखी थी। ज़ारून तकरीबन 9 माह का था जब अपनी सोचों और अजियतों से छुटकारा हासिल करने को उसने इस्लामाबाद में एक मल्टी नेशनल कंपनी में जॉब कर ली थी। ज़ारून बेहद शरारती और हाइपर एक्टिव बच्चा था जिसे संभालने में लवीज़ा के दांतों से पसीना छूट जाता। होता भी क्यों नहीं, आखिर राना मीर हादी का खून था। लवीज़ा इकबाल का जीना हराम ना करता तो किसका करता। बामुश्किल उसे कपड़े पहना कर नारों के हवाले किया और खुद जल्दी से तैयार होकर गाड़ी लेकर ऑफिस के लिए निकली। रास्ते में उसे इकबाल हमीद की कॉल आई थी। ट्रैफिक सिग्नल पर रुक कर फ़ोन को देखा। उसने इंतहाई बेजारगी से कॉल पिक की। अस्सलाम वालेकुम पापा, कैसे हैं आप? लहजा काफ़ी पुरतकल्लुफ़ था। वालेकुम सलाम, कैसा है मेरा बच्चा और हमारा जिगर गोशा कैसा है? वो ज़ारून की बात कर रहे थे। बिल्कुल ठीक है पापा, बहुत परेशान करते हैं। वह मुद्दा बुलाए उनसे नॉर्मली गुफ्तगू कर रही थी, लेकिन फिर हाँ, तो जब उसका कोई सरप्राइज होगा तो तुम्हें उसे अकेला बिल्कुल नहीं संभालना पड़ेगा। लीजिए, खुदा के लिए मान जाओ, कोर्ट से खुला लेना मेरे बाएं हाथ का खेल है। मेरे दोस्त का बेटा बहुत सुलझा हुआ है। लीजिए, वो ज़ारून को भी अपनाने के लिए। खुदा के लिए पापा बस कर दे। आप मेरा जवाब जानते हैं तो क्यों करते हैं मेरे साथ ऐसा? आप जानते हैं मैं मर सकती हूँ लेकिन इस रिश्ते से अलग नहीं हो सकती। अब आपने दोबारा मुझसे इस मुतालिक बात की तो मैं आपसे बात ही नहीं करूँगी पापा। वह चिटक पड़ी, इसलिए जब बोली तो बोलती चली गई। मैं उसे रास्ते से ही हटा दूंगा, नफरत अंगेज लहजे में कहते वो धाड़े तो लवीज़ा के पैरों तले से ज़मीन खींच गई। यूँ लगा जिस्म से जान खींच ली गई हो। तब मेरी जनाजे को भी कंधा देने के लिए तैयार रहिएगा आप। गम गुस्से की इंतहा से आवाज़ फट गई। उसने कहते फ़ोन बंद करते एयरपोर्ट निकाल कर पैसेंजर सीट पर उछाला। उसका दिमाग पूरी तरह उलट चुका था। ऑफिस पहुंच गई थी, इसलिए गहरे गहरे सांस भरते खुद को नॉर्मल किया। बामुश्किल खुद को घसीटती इमारत की दूसरी मंजिल पर लाई और अपने कैबिन में आ गई। ऑफिस का माहौल बहुत ही ज़्यादा अच्छा और दोस्ताना था, जैसे फ़िलहाल कंपनी के मालिक मिस्टर कमाल के बेटे मिस्टर जियान देख रहे थे, क्योंकि काफ़ी दिनों से मिस्टर कमाल की तबीयत नासाज थी। शादीशुदा मिस्टर जियान भी काफ़ी नफीस तबीयत के मालिक थे, जो तमाम एम्प्लॉयज़ से काफ़ी एहतराम से पेश आते थे। उनकी मौजूदगी में ऑफिस की हर लड़की बेहद कंफर्टेबल महसूस करती थी। 2 माह पहले कंपनी खसारे में चल रही थी, तब किसी दूसरी कंपनी ने इस कंपनी की 60% शेयर्स खरीद कर इसमें बड़ी सरमायाकारी की थी। तब कंपनी दोबारा चल पड़ी। आज भी ऑफिस में काफ़ी अफरा तफरी का आलम था। सुना था आज कंपनी के शेयर्स खरीदने वाले मालिक तशरीफ़ ला रहे थे और बाकायदा आज से ज्वाइन करने वाले थे, लेकिन उसे आज किसी चीज़ में दिलचस्पी महसूस नहीं हुई थी। दिमाग मुख्तलिफ सोचों के अमाज का बना हुआ था। दिन ब दिन पापा का इसरार बढ़ता जा रहा था कि वो अपनी ज़िंदगी के मुतालिक कोई हतमी फैसला ले, जिसकी वजह से उसको बेहद ज़हनी दबाव का सामना करना पड़ रहा था। उसे ऑफिस से बुलावा आया था क्योंकि वो जान साहब की पर्सनल असिस्टेंट थी। वो ज़रूरी फाइल्स उठाकर ऑफिस तक गई। हल्की दस्तक देकर अंदर दाखिल हुई, तभी दरवाजे पर ही कदम जम से गए। सांस सीने में ही कहीं अटक गया। वो सांस नहीं ले सकी थी। हमला बहुत अचानक हुआ था। वो अपनी जगह पर पथरा सी गई। तकरीबन पौने 2 साल बाद वो पत्थर दिल दर्द कर शख्स अपनी तमाम दरवजाहत गरूर और तमकना समेत सियाह सूट में ठीक उसके सामने बॉस वाली सीट पर बड़ी शान से विराजमान था। मीर हादी ने एक अजरती सी निगाह उसके हौनक और हैरत से फैली कुतई आंखों पर डाली। बेशक उससे निगाह हटाना मीर हादी के लिए दुनिया का मुश्किल तरीन काम था, लेकिन फिर भी निगाह अपने मोबाइल पर जमा दी। आइए आइए मिसिस लवीज़ा, बेटा फाइल्स रेडी हैं? जियान साहब को ही उसे मुखातिब करना पड़ा, जो दरवाजे में जमी हुई थी। जी सर। वो फौरी तौर पर संभली थी। वो शख्स मुकम्मल अजनबियत अख्तियार किए हुए था। लवीज़ा के दिलो दिमाग में दर्द की झकड़ से चलने लगी, लेकिन फिर भी खुद पर काबू पाए रखा। आगे बढ़ी और जियान साहब को फाइलें पकड़ा दी। लवीज़ा, इनसे मिलिए, मिस्टर राना मीर हादी हैं आपके नए बॉस। आज से आप इनको असिस्ट करेंगे। जियान साहब ने कहते उसके जिस्म से रही सही जान भी निकाल दी थी। उसकी ज़बान तालू से चिपक गई। जियान साहब ने उसे कुछ ज़रूरी काम की हिदायत दी और जाने का कहा तो वह सर पर पैर रखकर ऑफिस से भागी और अपने कैबिन में आकर गहरे गहरे सांस भरे। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ था? महज इत्तेफाक था या कुछ और? वह बिल्कुल समझ नहीं पा रही थी। सोच सोच कर पागल होते उसका दिमाग सुन्न हो गया। दरअसल अब वो खुद में इतनी भी सकत नहीं पा रही थी कि इस संगदिल हरजाई के मज़ीद ताने तशने, कड़वी जहरीली बातें या कोई ऐसा फैसला सुनती जिसे सुनकर वो वाकई मर जाती। तभी लम्हों में एक नतीजे पर पहुंची थी। मीर हादी उसे ऑफिस से बाहर जाता दिखाई दिया था। तब महज 5 मिनट में उसने अपना रिज़ाइन लेटर टाइप करके उस पर साइन किया और दस्तक देकर जियान साहब के ऑफिस में दाखिल हुई थी। कहिए लवीज़ा बेटा, आपको कुछ कहना है? जियान साहब ने हिस्बे मामूल उसे बात करते झिझकते देखा तो नरमी से पूछा था।
सर, ये मेरा रिज़ाइन लेटर है, प्लीज़ इसे एक्सेप्ट कर लें, उसने धीमे से कहते टेबल पर अपना इस्तीफ़ा रखा। तो ज़ियान साहब शशतर सा होते उसकी जानिब देखा और रिज़ाइन लेटर उठाकर पढ़ना शुरू किया। इधर राना मीर हादी जो दरवाजे में खड़ा था, उसके पैर वहीं दरवाजे में ही जम गए। आपने इस कंपनी से रिज़ाइन करने की कोई ठोस वजह नहीं लिखी बेटा? उनके पूछे गए एक वैलिड से सवाल पर लवीज़ा अपने हाथों की उंगलियां मरोड़ कर रह गई। जब अगले ही पल उसे धचका सा लगा था जब ज़ियान साहब इस्तीफ़ा देने की वजह की तह तक पहुंच गए। नए बॉस की वजह से रिज़ाइन दे रही हैं लवीज़ा, तो आप इंतहाई कम अक्ली और गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रही हैं। किसी को जाने परखे बगैर आप किस तरह किसी का करेक्टर असेसमेंट दे सकती हैं? बाबू उसे पास बरस कर रहा था। लवीज़ा क्या कहती, खामोश रही। लवीज़ा बेटा, राना मीर हादी बज़ाहिर बहुत रॉड लगते हैं, लेकिन हैं बहुत नफीस और पाकरदार। वो बहुत बेज़रर हैं। जी बिल्कुल, ये मुझसे ज़्यादा और कौन जान सकता है कि वो कितने ही बेज़रर हैं। पागल, बेनत्था, बेल, गुसेल और घमंडी। अच्छा, मेरी बात माने, मेरे कहने पर एक हफ्ते तक अपनी जॉब कंटिन्यू रखें। अगर कोई बात बुरी लगी या यहाँ आपके मिजाज के खिलाफ हुई तो मैं उसी वक्त ये रिज़ाइन एक्सेप्ट कर लूँगा, ज़ियान साहब ने नरमी से कहा। तो लवीज़ा ने गहरी सांस खारिज करते इस बात में सर हिलाया। ज़ियान साहब ने वो लेटर उठाकर दराज में रख दिया। लवीज़ा चुपचाप कमरे से बाहर निकली। मीरहाती तेज़ी से दीवार की ओट में हुआ था। वो अपने कैबिन में चली गई। उसके बाद ऑफ होने तक वो पूरा दिन उसे दिखाई ना दिया था। उसने एक धमाके से पास पड़ा गुलदान उठाकर दीवार पर फोड़ा था। यानी कि उसकी इतनी हिम्मत थी कि मीरहाती के वहाँ आने पर फिर से वहाँ से फरार हासिल करना चाहती थी। लेकिन अब की दफ़ा मैं तुम्हारा कब्र तक पीछा करूँगा लवीज़ा। मीरहाती का खून खामखा खोलता रहा। वो लाउंज में बैठी ज़ारून को सिरलैक खिला रही थी और सामने बैठे अपने पापा को, जो नानों से बातों में मशगूल थे, बुरी तरह नज़रअंदाज कर रही थी। इकबाल हमीद कब से उसकी खामोशी नोट कर रहे थे, जब यूं लगा लॉन में एक तूफ़ान बदतमीज़ी सा बरपा हुआ है। ये क्या हो क्या रहा है यहाँ? इकबाल हमीद गार्ड्स पर चिल्लाए थे, लेकिन अगले ही लम्हे उनका पारा आसमान छूने लगा जब राना शाहमीर दरियाब गार्ड्स को पीछे धकेलता लाउंज में दाखिल हो चुका था। लवीज़ा उसे देखकर दम साध गई। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई इधर का रुख करने की? मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। इकबाल हमीद हारे थे, मगर शामिर किसी की जाने मुतवज्जा नहीं था। उसकी जान तो इस नन्ही सी जान में जान अटकी थी, जिसके छोटे छोटे नैन नगूश हू बहू उसके भाई से मिलते थे। शामिर ने लपक कर ज़ारून को अपनी बाहों में भरा था। खबरदार मेरे नवासे को हाथ लगाया, मैं तुम्हारे ये गलीज हाथ तोड़ दूंगा और तुम दोनों भाइयों को जहन्नम वासिल करके ही दाम लूँगा। कहते इकबाल हमीद शामिर की जानिब लपके, मगर दरमियान में लवीज़ा आ गई। स्टॉप इट पापा, खुदा के लिए बस करें आप, मेरे मामलात से दूर रहें, मैं खुद ही हैंडल कर लूँगी सब, लवीज़ा ने बेतासुर लहजे में कहा। तो इकबाल हमीद वहीं साकित हो गए थे। शामिर दीवानों की तरह ज़ारून को प्यार कर रहा था और हैरत अंगेज़ तौर पर न वो रोया न घबराया था, बल्कि अपनी बड़ी बड़ी आंखों से टक्कर टक्कर इस शख्स को देखे जा रहा था। भाभी, बाहर गाड़ी में भाई ज़ारून का इंतज़ार कर रहे हैं, मैं उसे इनसे थोड़ी देर मिलवा लाता हूँ। वो अपने बेटे से मिलने के लिए तड़प रहे हैं। शामिर ने लवीज़ा की जानिब देखकर उससे पूछा नहीं था, सिर्फ बताया था। वो बिल्कुल साकित थी, लेकिन इकबाल हमीद को पितंगे ज़रूर लगे थे। लवीज़ा, ये गलती मत करना, वो पागल आदमी हमारे बेटे को छीन लेगा हमसे, इकबाल हमीद चिल्लाए थे। लवीज़ा ने कुछ कहने को मुँह खोला, मगर इससे पहले ही शामिर बोल उठा, हम जैसे भी हैं, कम अज़ कम आप जितने कमज़फ्त नहीं हैं, जिन्होंने एक बीवी को उसके शोहर से और एक बेटे को उसके बाप से छीन कर अलग किया हुआ है। शामिर के मुतनफ़िर लहजे में गहरी काट थी। इकबाल हमीद के चेहरे का रंग बदल गया था, जबकि लवीज़ा ने हैरत से शामिर की जानिब देखा। भाभी, आपको जाने पता है या नहीं, लेकिन बताता चलूँ कि आपके जाने के बाद भाई आपको लेने आए थे, लेकिन आपके वालिद मोहतरम ने ना सिर्फ उन्हें अपने घर से बेइज्जत करके निकाला, बल्कि भाई को ये तक नहीं बताया कि आप कहाँ हैं। हत्ता कि भाई आपका जहाँ से अता पता करवाने की कोशिश करते, वहाँ से आपके वालिद मोहतरम तमाम डेटा गायब करवा देते। बाप तो बेटियों का घर बसाना चाहते हैं, लेकिन इनकी भाई के लिए इस बिला वजह की नफरत ने आपका घर बर्बाद कर दिया है। शामिर कहकर रुका नहीं, ज़ारून को लेकर बाहर निकल गया, जबकि लवीज़ा को लगा उसके सर से छत छिन गई है। वो नंगे सर आबला या भड़कती सहरा में खड़ी है। लवीज़ा ने इकबाल हमीद की जानिब देखा, जो शिकस्त से वहाँ खड़े थे, जिन्होंने एक मरतबा भी शामिर की किसी बात की नफ़ी नहीं की थी। मतलब वो सच बोल रहा था। लीजे मेरी गुड़िया, वो मुझसे अजीब तरह की बकवास कर रहा था, कह रहा था तुम्हारी बेटी को अपनी। लीजे, इकबाल हमीद उसे आवाज़ें देते रहे, मगर वो फूट फूट कर रोती हुई जाकर अपने कमरे में बंद हुई थी। उसे कुछ भी नहीं सोच रहा था। तड़प तड़प कर रोते अपना सर पकड़ लिया।
अपने बेटे को सीने से लगाए मीर हादी की आंखों में आंसू थे। बड़ा जज्बाती सा मंजर था। शामिर की आंखें भी नम थी। अजीब से खूबसूरत तरीन एहसासात थे। ज़ारो ने अपने छोटे छोटे हाथों से मीर हादी के चेहरे को छुआ। जब तक हादी उससे मिला नहीं था तब तक उसे सब्र था, लेकिन अब इस नन्ही सी जान को गोद में उठाए उसे यूं लगा जैसे वो अपनी औलाद के बगैर एक पल भी नहीं जी पाएगा। ज़ारून ने भी बाप की गोद में ज़रा सी भी अजनबियत का इजहार नहीं किया था, बल्कि वो उसकी घनी मूँछों को अपनी छोटी छोटी मुट्ठियों में भर रहा था। हादी ने उसे गुदगुदाया तो वो खिलखिलाकर हंस दिया। मुझे लगता है संकी बूटे ने भाभी को बताया ही नहीं कि आप उन्हें लेने गए थे। अभी मैंने बताया तो भाभी काफ़ी सदमे में लग रही थी। शामी ने उसे बताना ज़रूरी समझा था, मगर वो ज़ारोन में यूं मगन था जैसे उसे किसी बात की परवाह ही ना हो। शामी ने एक सर्द सांस अपने अंदर खींची। इस ऊँट ने किसी करवट नहीं बैठना। 2 घंटे ज़ारून को अपने पास रखने के बाद शामी ने उसे अंदर पकड़ाया और वहाँ से चले गए। फिर वो रोज़ 2-3 घंटे के लिए यूं ही ज़ारून से मिलने आते रहे थे।